Good morning, all. Today we're going to be starting with our second part of our eye lectures. So today I'll be talking to you about optics, and I'll be asking questions from you because we've all been doing optics since a long time in school. In physics, you must have dealt with a lot of optics. So the first thing that I'll be talking about is, just a second. In the first part of our lecture, we'll be covering refractive media, the power of the eye and lens, image formation, what is the reduced eye of listing, and accommodation. So what do you mean by refraction? Let me see if someone can answer that. Abhishek Meena. Can you just unmute yourself? Okay, what about Abhishek Singh? Akash Yadav? Yes, Akash? What do you mean by refraction? Have you heard of this term, refraction? Yes, non-diffraction is basically the light phenomena Abhishek, can you speak up? in which bending of light occurs due to the change Yes, in bending of which light light. travels from one medium to another. So, okay. So Akash told us, thank you, Akash. So you've told us two things. It is the bending of light, and once the light moves from one medium to the other. Now, I would like to add one point to this. The light should also hit the second surface at an angle. Let's see this word. It's written here, angulated. Why? Because if the light will hit it at exactly 90 degrees perpendicular, then it does not get bent. So two things are required for refraction to take place. Refraction, as he correctly said, is the bending of light when it moves from one medium to the other. आप सबने physics करी होगी school में, so you must have done a number of experiments with the light and the bending of light with the prism. So all of our eye vision, and it also depends upon the bending of light and how the light enters our eye. So two things it's going to depend upon: the refractive index. What is this? This is the ratio of velocity of light in air to the velocity in that medium. So as we know, air में क्या speed है हमारी light की? 300,000 kilometers per second. And we take the refractive index of air as 1. अब अगर glass की 200,000 per kilometers है, जैसे air में we have 300,000 kilometers per second, and in glass the speed is 200,000 kilometers per second. So what is the refractive index of glass? 300,000 by 200,000, that will be 1.5. And the second thing this bending of light is going to depend upon is the degree of angulation. What is the angle at which the light is hitting this other medium? Let me show you the diagrams and then you'll understand this better. One more important concept that is going to be there in the whole throughout is that light coming from more than 6 meters, that is 20 feet away, is thought to be parallel. क्योंकि इतनी दूर से अगर कोई भी लाइट आपकी आंखों में पड़ रही है, they are thought to be parallel rays of light, and the optics involved will be for the parallel rays of light. और अगर पास से आ रही है, so पहले light diverge करेगी and then it will hit our eyes. This first diagram, what you can see here is
the light is entering from one media to the other. यहाँ पे air है, ये glass है, but bending नहीं हो रही. सिर्फ क्या हो रहा है? As you can see, the distance is becoming lesser. So the speed of light is changing. As I told you, air में speed है 300,000 kilometers per second. Glass में speed of light is 200,000 kilometers per second. So glass का refractive index is different. It is 1.5 and air ka it is 1. Approximately. There'll be variations when we calculate. Actual values have to be calculated depending upon the media, kahan se kahan transfer ho rahi hai light. Then the other thing is this bending is going to take place only when it hits an angulated surface. जो आपने prism की activities करी होंगी, तो you must have seen we have a prism and then we see the bending of light and then breaking up of light into the 7 components, 7 colors. तो बहुत common experiment है, सबने school में करा होगा. So this bending takes place at an angulated surface. So refraction is the bending of light when the light moves from one media to another and hits the second media at an angulated surface. So the definition would be bending of light rays at an angulated interface if the refractive indices are different. And light more than 6 meters away is thought to be parallel. अगर दूर से आ रही है, तो we will consider it as parallel rays of light. This is when it is more than 6 meters away. What if it is less than 6? जब less than 6 meters या less than 20 feet कहते हैं, then it is thought to be a point source of light. तो क्या होएगा? यहाँ से पहले rays diverge करेंगी and then when they hit the interface, जहाँ पे भी कोई lens है, then they'll have refraction. Then one more thing that you can see in this diagram is here. What is happening is this ray of light is hitting this glass at what angle? Okay, anybody can unmute and say it. I've given everybody the control to unmute themselves. 90 degrees. Yes, thank you, Abhishek. So 90 degree. And I said कि अगर 90 degree पे hit करेगा, so refraction नहीं होएगी. Only the change on the speed. So it is passing through the center of the lens, and the center of the lens is called as the nodal center. जो रे nodal center से cross करती है, उसे हम principal axis भी कहते हैं. और इसी के ऊपर जाके ultimately focus होता है in good lens of a good power. So we have a spherical lens and a cylindrical lens. Spherical, maybe we have two types. It can be convex or a concave. ये भी सब स्कूल की बातें हैं. Convex lens is thick at the center and thin at the edges. ये biconvex बनाया है, biconcave बनाया है, दोनों तरफ. Concave is thin in the middle, thicker at the edges. What we all know already is convex lens is a converging lens and a concave lens is a diverging lens. ये तो है अगर cylindrical lens है. What about spherical lens है, sorry. What about if it's a cylindrical lens? Cylindrical lens में एक surface plane होती है, दूसरी surface either convex or concave. So instead of coming to a point focus, what happens here is you come to a focal line. Let's see in the diagram. ये एक convex lens है. As you can see, this is from more than 6 meters away, तो parallel. I'm sure ये शुरू का part सारा easy है. So ये जो center से line निकल रही है, जो nodal point से निकल रही है, that is the principal axis, not showing any diffraction. यहाँ से सब bending हो रही है, and this is the point where it is being focused on this principal axis. तो ये nodal point है, इसे principal axis कहते हैं. ये focal point है जहाँ पे focus हो रहा है, and the distance between the nodal center and the point of focus is the focal length. And one more thing, power.
power of the lens given in diopters is inverse या reciprocal of the focal length in meters. So ये सारे concepts बारी बारी हैं, but I will emphasize them once again क्योंकि हमारा सारा optics of the eye is based on a number of these concepts. So initially I want you to get these concepts in your mind before we go on to the higher end. Concave lens में क्या हो रहा है? Diverge हो रही है. Again, we have this nodal point, the principal axis, and जैसे स्कूल में पढ़ा था कि we say कि ये कहाँ से diverge हो रही है. So you have to draw it backwards, and वो ऐसे ऐसे करके हम draw करते थे. And then this is considered as your focus. Imaginary point on this principal axis from where the light rays appear to diverge. So again, the distance between this imaginary point and the nodal point is the focal length for a concave lens. Power again similarly. अगर अभी मैं बाद में पूछूंगी हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया में पावर के बारे में, अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स. सिलेंड्रिकल लेंस में क्या है? एज आई टोल्ड यू, एक सरफेस इसकी प्लेन है और एक कन्वेक्स या कॉनकेव है. सो लाइट रेज दो साइड से रिफ्रैक्ट हो रही हैं, टॉप और बॉटम से नहीं हो रही. सो इट बेंड्स द लाइट रेज इन वन प्लेन ओनली, नॉट ऑन अ सिंगल फोकस बट ऑन अ फोकल लाइन. यू कैन सी इट इन दिस डायग्राम. ये स्फेरिकल लेंस है ऊपर वाली और ये सिलेंड्रिकल है. बोथ कन्वेक्स ओनली. सो इसमें हर तरफ से लाइट बेंड हो रही है, ऊपर नीचे साइड्स, एंड इट इज बेंडिंग टू अ फोकल पॉइंट. यहां से बेंडिंग हो रही है बट ऊपर नीचे से नहीं हो रही. सो इट इज बेंड टू अ फोकल लाइन which is almost as long as the length of the cylinder. So that is the difference between a spherical and a cylindrical lens. So how can the cylindrical lens also be made into a spherical? If we put two cylindrical lens at 90 degrees to each other, कि एक प्लेन में बेंडिंग हो रही है, एक में नहीं हो रही, अगर हम दोनों को ऐसे रख देंगे, then we get a spherical lens. Because कहीं पे आप लोगों कहीं lots of you will be having specs, so you will say कि भाई मेरे पावर क्या है, cylindrical power भी है, so we'll be talking about all of that. Okay, this is just showing the same thing. Two cylindrical lens kept at 90 degrees of each other will act like a spherical lens and bring it into a point focus instead of a focal line. Focal length is the distance beyond a convex lens at which the parallel rays come to a focal point. I've already told you, kahan pe on the principal axis the light is getting focused. That is your focal point, and distance between the center of the lens and this focal point is your focal length. It's thought to be kahan se aayi light, uska distance, kahan gayi. Now, normally we consider the light coming from parallel, from more than 6 meters away as parallel rays of light. So we consider that as infinity. So 1 over infinity will be 1 only, 0 only. So we have the focal length is equal to लेंस के सेंटर से कहां पे फोकस हुआ नॉर्मली. सो इस साइड का डिस्टेंस इंफिनिटी है, सो 0 हो गया. सो वी टेक द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू द सेंटर, द नोडल पॉइंट. सो एज आई टोल्ड यू अगेन, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एज द नोडल पॉइंट. जो लाइट रे बिल्कुल इस सेंटर से क्रॉस करती है, ये 90 डिग्रीज पे हिट करती है, तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होती है. रिफ्रैक्ट नहीं होती. This line is called as the principal axis, and the point on the principal axis जहां पे सारा focus हो रहा है, that is the focal point.
The distance between the focal point and the nodal point is your focal length, and power is 1 over focal length in meters. Okay, again, these are the common definitions which we have used till now. Any doubt till here? Okay, I'm going to assume there's no doubt because nobody is speaking. Now let's move forward. अब ये बता रहा है कि अगर 6 मीटर्स से ज्यादा से लाइट आ रही है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये एक प्रॉपर लेंस है. यू कैन सी इस दोनों फर्स्ट टू डायग्राम्स में पावर ऑफ द लेंस इज द सेम, सो इट इज ब्रिंगिंग इट टू फोकस हियर. सो ये इसकी फोकल लेंथ है पैरेलल रेज ऑफ लाइट से. बट व्हाट इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ closer point, closer than 6 meters, then it is thought to be a point source of light. So पहले light diverge करी और फिर इस पे hit करी, तो जो फोकस हुआ वो पीछे हुआ, सेम जगह पे नहीं हुआ लेंस का. पर अगर हम चाहते हैं कि सेम जगह पे फोकस हो, as you can see here, sorry the line is not straight, but सेम जगह पे फोकस हो, so क्या हुआ, ये लेंस का शेप चेंज हो गया. It has become more convex. That means the power of the lens has changed. This is the underlying basis of the process of accommodation. Accommodation just means that you can focus on an object at varying distance. मतलब दूर की चीज भी हम फोकस कर सकते हैं, पास की चीज भी हम आई पे फोकस कर सकते हैं. अब हमारी आई का साइज सेम है, रेटिना एक फिक्स डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लेंस. हमारी आई बड़ी और छोटी तो नहीं होती. There are certain fishes जो अपनी आई का साइज बड़ा कर सकती हैं. तो और अगर हमें दूर से कोई चीज दिख रही है और वो लेंस पे फोकस कर रही है, तो ये हमारी पावर है लेंस की. अगर कोई पास की चीज को हमें अगेन रेटिना पे ही फोकस करना है, तो या तो हमें अपनी आई की लेंस का पावर चेंज करना होगा, तभी वो सेम जगह पे फोकस आएगा. And that is what we will be discussing later on in this lecture, is the process of accommodation. I expect कि जब भी आपको अगर किसी को कुछ point clear नहीं हो रहा, you can just either raise your hand or unmute yourself if by chance I don't see that raised hand, and you can just ask me. Okay? Just let me know कि okay, I had this doubt, ma'am. So I can sort it out as and when we go, because अगर आपको basic concepts clear नहीं होंगे तो बाद की चीजें थोड़ी सी problem हो सकती है आपको. ठीक है? So by a convex lens, point focus on the opposite sides of the lens directly in line with the point source, center of the lens में. तो ये image जो बनती है normally it is upside down and the two lateral sides of the image are reversed. मतलब left becomes right and right becomes left. It is similar as in a camera. हमारी eyes को बहुत बारी you will see in a number of books being compared to a camera. So what I want to just show you in this picture is कि उल्टी है. जो आपको दिख रहा है, image is inverted and reversed. Right becomes left and left becomes right. Same thing shown in this other diagram. So हमारी लेंस पे inverted image बनती है with reverse sides. So but still हमारा mind उसे perceive करता है as an upright position despite this orientation. ये जो अगर हमने कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे उसको सीधा करने की कोशिश करे, अगर इमेज को सीधा करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे उल्टा परसीव करता है. सो हमारा ब्रेन बचपन से ही, मतलब सिंस बर्थ, दिस परसेप्शन इज प्रेजेंट सिंस बर्थ. इट इज इनेट.
मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन. सेंसेशन इज क्या पता चल रहा है, ब्रेन में क्या जो भी इमेज बन रही है या सुनाई दे रहा है. एंड परसेप्शन इज व्हाट what is the interpretation of your brain to that stimulus. So the perception image ulti ban rahi hai, reversed hai, but the perception at the brain level, at the cortical level, is of a upright object. So, and this is present in infants and is innate, and the underlying mechanism or the process is not known to anybody till now. And बस सिर्फ ये है कि वैसे इमेज इन्वर्टेड बन रही है बट हमारा ब्रेन उसे सीधा ही परसीव कर रहा है. ठीक है, एंड ये बचपन से है, innate. Coming to the power of the lens. Power of the lens is just the ability of the lens to bend light rays. कितनी उसकी power है, measured in diopters, and as I told you, it is 1 over the focal, reciprocal of the focal length in meters. Just an example, अगर convex lens converge कर रहा है 1 meter behind the lens, तो 1 over 1, the power is 1 diopter. Concave में power हम measure करते हैं as ability to neutralize the effect of convex lens. And convex lens की power plus में होती है. अगर आपने, as I told you, अगर आपकी किसी की specs होंगी तो आपका power अभी, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू हैव मायोपिया, सो माइनस में बताई होगी कि -0.5, -1, -1.5. दैट इज जो चश्मा है आपका कॉनकेव है. वील बी डिस्कसिंग दिस लेटर ऑन. ठीक है, तो वो माइनस. एंड जो अगर आपके किसी फादर या मदर या ओल्डर ग्रैंड पेरेंट्स का चश्मा होएगा उसकी पावर प्लस में होगी. कन्वेक्स लेंस लगाया आगे चश्मे में. This is just showing the various powers. This is 1 meter. So agar focus is 1 meter behind the center, so the 1 over 1 is 1 diopter. Agar half meter pe focus hai, so power is 2. Agar 10 centimeters ya 0.1 meter pe focus hai, to power is 10. ऐसे ही 1 over focal length in meter is for your power and measured in diopters. सिलेंड्रिकल लेंस की पावर निकालने में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं. एक तो कितना उसकी पावर है, एज अ सेड, कितनी वो जो कन्वेक्स लेंस है उसकी कितनी पावर है, कहाँ पे फोकल लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन द फोकल लाइन एंड द सेंटर ऑफ द लेंस. सो दैट इज योर पावर. तो अगर 1 मीटर है तो +1d. एंड देन उसकी एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है तो 0, वर्टिकल है तो 90, एंड इन बिटवीन ऑल्सो वी कैन हैव एक्सिस. एज आई टोल्ड यू, जब किसी की चश्मे का पावर निकालेंगे तो कई बारी पावर के साथ सिलेंड्रिकल पावर भी लिखी होती है कि कितने पे दूसरा लेंस लगा है. ठीक है, दैट इज लाइक एन astigmatism which we'll be discussing. It's equivalent to a camera. जैसे कैमरा में लेंस है वैसे हमारे आईज में जो डायोप्ट्रिक अपरेटस है वो है कॉर्निया एंड योर लेंस. वेरिएबल अपर्चर है. जैसे हम कैमरा का लाइट का फोकस बढ़ा या घटा सकते हैं वैसे हमारा प्यूपिल है. एंड एज आई टोल्ड यू, आइरिस के अंदर 2 मसल्स हैं, इंट्राओकुलर मसल्स, स्फिंक्टर प्यूपिले, डायलेटर प्यूपिले. जब डायलेट होती है आंखें, अगर हम अंधेरे में जाते हैं डायलेशन होती है, इट्स कॉल्ड एज मिड्रियासिस. ठीक है, एंड जब पैरासिम्पथेटिक इनपुट आता है या ब्राइट लाइट में जाते हैं, सो देयर इज constriction of the sphincter pupillae and there is meiosis, and the size of the pupil can vary and vary the amount of light entering the eye, and the film in your eye is your retina. So अब I'm just going to tell you कि अगर लाइट हमारी आंख में घुस रही है तो पहले वो एयर से निकली, फिर वो कॉर्निया में गई, कॉर्निया के पीछे क्या था, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर के बाद लेंस, फिर विट्रियस ह्यूमर एंड देन इनटू द रेटिना. सो ये 4-5 चीजें इसे क्रॉस करनी है.
एंड हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है. कॉर्निया एंड एयर के बीच में डिफरेंस है, कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर के बीच में डिफरेंस है, एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच में डिफरेंस है, लेंस एंड विट्रियस ह्यूमर के बीच में डिफरेंस है. बट मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ है? Between the air and the cornea. So the maximum refraction is going to take place on the anterior surface of cornea. And as you can see, in इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में बहुत कम refractive index है. तो refraction होएगी, but to a lesser extent. And maximum refraction will take place when the light is entering into the eye at the air cornea interface. तो light अंदर आ रही है, ठीक है? Again the same diagram, it's just showing you the difference कि यहाँ का इतना है, फिर इतना है. So as you can see, ये बहुत कम फर्क है, 0.04, 0.03 का फर्क है. But 1 and 1.3 में बहुत फर्क है. So as light enters, एक एयर और कॉर्निया का इंटरफेस होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम बेंडिंग होगी. फिर कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर में लाइट जाएगी, एक्वस ह्यूमर में लेंस, लेंस के बाद विट्रियस ह्यूमर, एंड देन इट विल हिट द रेटिना. Reduced eye or the schematic eye of listing. इन्होंने क्या करा कि just to make the optics and the calculation a little easier, अब मैंने बताया था 4 surfaces हैं जहाँ पे refraction होगी. तो उन्होंने क्या करा, all the refractive surfaces को add up करके एक सिग्नल सोच लिया, calculation के purpose से है तो चारों, and it simplifies the involved optics. So they say there's a single refractive surface and the central point is 17 millimeters in front of retina. Now who's going to tell me? I just want somebody to do the calculations with me. Divya, you've raised your hand also. Please, Divya, unmute yourself and let me know what is the... Yes, Divya? Can you unmute yourself? Okay, Garima Rawat. Garima Rawat and Divya. Any of you? Can you unmute yourself? You will have to take a little bit of interest. And Girish Kumar. Can you unmute? Can any one person unmute? Can any one of you unmute yourself? So I just want to know that you can unmute yourself. Good morning, ma'am. Who's this? Can you please introduce yourself? Ma'am, Tejas Sekhri. Okay. Tejas, you could unmute yourself last time also. Is that so that only some of you can unmute yourself? Ma'am, I believe some students have joined from their mobile, ma'am, so
They don't have an option to unmute. Okay, okay, ठीक है. Okay, Tejas, then you will have to help me for a minute. So इसमें ये लिखा है 17 millimeters in front of retina. और मैंने फिर calculation करी है 59 diopters की. How do you think we came to this value? Ma'am, 17 millimeters is 0.017 meters. Ma'am, the inverse of that would give us the power in diopter. Yes. So, sorry. Yeah, thank you, Tejas. I'll just show you in the next diagram. You can mute yourself. So, as he said, ki 1 over focal length in meters. So, 1000, because मैं उसको millimeters over 17 in meters will give you 59 diopters. This is when the excuse me, lens is accommodated for distant vision. Again, this is just showing कि ये सारी surfaces पे diffraction हो रही है. Again, I'm just showing you the eye diagram so that एक दोबारा concept आ जाए कि कहाँ से cross कर रही है. We have this lens held in place by the suspensory ligaments, जो iris ciliary body, and then this is the iris. यहाँ पे aqueous humor है anterior chamber में, posterior में vitreous humor है and retina is पीछे. So एक तो पहले cornea की surface पे, फिर aqueous humor, फिर lens, फिर vitreous humor, and then finally to the retina. And what we are saying is कि जो ये center point है lens का, this is 17 millimeters in front of the retina. हमारे eye का approximately the eye का it is a spherical object 24 millimeters in diameter. तो जो ये lens है ये cornea से कितने पीछे है? 24 minus 7, that is about 7 millimeters behind the cornea or 17 millimeters in front of the retina. And as I told you, focal length is the distance between the center point and the point of focus. हमारी eye जब भी कुछ focus करेगी तो वो retina पे focus करेगी. अगर दूर से आ रही है light more than 6 meters away, so relaxed lens will be able to focus it. ऐसे हमारी eye बनी है. और अगर पास से आ रही है, then via the process of accommodation, again the focus will be at the retina. So इन्होंने क्या करा, ये सारी इतनी सारी surfaces थी, यहाँ 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 जहाँ पे रिफ्रैक्शन होनी है, इन्होंने क्या करा, सबको एक ही बना दिया, यहाँ 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 और यहाँ. तो एक सिंगल कहा लेंस है जिसका नोडल पॉइंट या तो 7 millimeters behind the cornea है या 17 millimeters in front of the retina है. ठीक है. So the distance from here to here is 17 millimeters, which is your focal length, and power is 1 over focal length in meters. So 1000 over 17 is 59 diopters. And जब उन्होंने ऐसे calculation करी, this is the schematic eye of listing या reduced eye of listing, जिसका पहले तो MCQ आता था कि इसकी क्या power है. And so normal human eye also behaves like a reduced eye, और हमारे eye की power approximately 59 diopters है. And कई बारी उसको 60 भी कई बुक्स में कहा होगा. वैसे 59 diopters है. अब क्योंकि मैक्सिमम रिफ्रैक्शन इस एज पे हुई थी और फिर यहाँ पे कम हुई है लेंस के लेवल पे, क्योंकि डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एयर और कॉर्निया में सबसे ज्यादा था. सो आउट ऑफ दिस 60 diopters, 2/3 of this is by the anterior cornea. मतलब अगर मैं 60 लूं इजी कैलकुलेशन के लिए जस्ट टू से, तो 40 diopters का जो पावर है वो कॉर्निया की वजह से है, because of the difference in the refractive index between the air and the cornea. And 1/3 of the power is by the lens. So approximately 20 diopters is by the lens. अगर हम इसको 3 parts में divide कर देते हैं, अगर हम 60 सोच के चल रहे हैं, तो 40 by the cornea and 20 by the lens. क्योंकि जो लेंस के आसपास जो फ्लूइड है, एक साइड पे aqueous humor और एक साइड पे vitreous humor,
उन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के जैसा ही है. So the amount of refraction at the lens surface is less. अगर हम लेंस को पानी की जगह, मतलब जैसे ये एक्वस और विट्रियस ह्यूमर की जगह एयर में रख देंगे, तो उसकी पावर ज्यादा होगी because of the difference in the refractive power. So bending of light depends upon two things: the difference in the refractive index and the angle. तो हमारी पावर की तो लेंस की ज्यादा है, बट बिकॉज उसके आसपास का जो फ्लूइड्स हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनसे बहुत सिमिलर है, सो पावर only 1/3 of the power of the eye is given by lens, 2/3 by the cornea. फिर भी lens is very important for us. Why? Because the lens has the ability to change its curvature, and that is the process of accommodation. नहीं तो क्या होता, हम सिर्फ दूर की चीज साफ देख पाते और पास की चीज लेस देन 6 मीटर्स को हम साफ ही ना देख पाते, क्योंकि हमारे आई का साइज तो बड़ा छोटा नहीं हो सकता है. सो वी नीड द लेंस टू चेंज इट्स पावर and focus this nearby object also on the retina, and this process is accommodation. Accommodation is a very commonly asked question, so please if you want you can make your notes. And ये बहुत commonly short note तो आता ही आता है इस पर. Theory wise also it's very important, practically also पूछा जाता है, वाइवा में बहुत पूछा जाता है. Accommodation, ठीक है. Accommodation just means the ability to focus light at varying, focus an object at varying distances. As you can see here, क्या हो रहा है? This is parallel rays of light more than 6 meters away. So normally हमारी eye ऐसे arranged है कि more than 6 meters away का चीज आराम से retina पे focus होएगा, because then there are parallel rays of light and the lens is arranged in such a manner. But एक active process है by which अगर 6 meters से कम का distance है, and you must be able to know कि अगर हम कोई चीज move भी कर रही है, अपनी तरफ भी आ रही है, दूर भी जा रही है, we can continuously keep it in focus. So अगर less than 6 meters है, so the eye is brought, this image is brought into focus on the retina by a process called as accommodation, in which the curvature of the lens, as you can see यहाँ पे से flatter है और यहाँ पे ऐसे convex है, और mainly anterior surface का curvature ज़्यादा change होता है. Curvature of the lens is increased to bring this diverging rays from close objects to focus on the retina. ठीक है, एक बारी मैं समझा देती हूँ, then I'll ask one of you to reiterate कि accommodation क्या है. ठीक है, so मैंने बताया था 60 में से अगर हम 40 कहें तो वो कॉर्निया की वजह से है और 20 approximately लेंस की वजह से है. But this power of the lens can change from voluntarily, मतलब हमें ब्रेन से इनपुट आएगा और वॉलेंटरी कोई एक्टिव प्रोसेस होएगा जिससे हम 20 से 34 डायोप्टर तक भी चेंज हो सकता है. और ये दिस डिफरेंस और चेंज इन द accommodation is called as amplitude of accommodation. And that is क्या पावर चेंज हुई, 20 से कितनी भी गई. और सबसे बेस्ट accommodation power is in children, क्योंकि उनका लेंस अच्छा सा नया इलास्टिक है. Curvature of the lens increases, shape changes from moderately convex, convex तो है ही, to very convex. Maximum in young children, तो अगर बच्चों की 14 डायोप्टर है तो आस्ते आस्ते as you grow older आपकी amplitude कम होती जाती है of accommodation, क्योंकि लेंस आपकी प्रोटीन है, डीनेचर करती जाती है. ठीक है, it is made of elastic capsule filled with a viscous transparent fluid. हमारी लेंस की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, और हमने क्या करा है, लेंस को खींच के रखा हुआ है.
हमने एनाटॉमी में डिस्कस करा था. Somebody will have to unmute and tell me. So अंश बंसल. अंश. Okay, हिमांशु यादव. प्रांजल उपाध्याय. Okay, let me. Sweetie Sharma. Please unmute. हेलो. Yes, sweetie. है ना? आपने Good मुझे morning, गुड मॉर्निंग स्वीटी. हमने ये अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. लेंस कहाँ पे है और कहाँ से अटैच्ड है. yes ma'am. हाँ जी बताओ. Lens. वो कुछ word याद नहीं आ लिगामेंट्स रहा है. मुझे. कुछ लिगामेंट्स है. Something ciliary Suspensory. नाम याद नहीं आ रहा. Oh yeah, suspensory ligaments. Okay. सस्पेंसरी लिगामेंट से सीलियरी बॉडी पे अटैच्ड है. थैंक यू स्वीटी. ठीक है. Thank you ma'am. So the reason for asking you is not to trouble you. I just want you to say anything. मतलब I want you to be able to talk to me and tell me. अगर नहीं समझ आ रहा बेटा, you'll have to ask me. ठीक है. So as Sweetie has told us, this is your lens. And you can see, एक चीज देखो, नोटिस करो कि जो posterior surface है ये देखो, ये ज्यादा convex है, और जो anterior surface है ये थोड़ी सी flatter है. And it is held into place by these about 70 suspensory ligaments, the other end of which is attached to your ciliary body. और ciliary body है क्या? ये हमारा second layer जो choroid था, जो vascular layer थी, वो anteriorly जाके it is modified into a ciliary body and then further on into the iris. और उसके बीच में जो opening है उसे pupil कहते हैं. So ciliary body के एक साइड पे suspensory ligaments हैं, the other end of which is attached to your lens, which is keeping this lens in a stretched kind of a position. मतलब जैसे एक रबर बैंड है, हमने उसको खींच के रखा हुआ है थोड़ा सा. जैसे ही हम उसको खींचना उसका छोड़ेंगे तो वो दोबारा अपनी शेप, ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा. या किसी बलून को हमने ऐसे खींच के रखा है. So these are the suspensory ligaments and then they are attached to the ciliary muscle. और ciliary muscle में दो टाइप के muscles हैं. We have the longitudinal or the meridional and the circular. ठीक है. मेरिडियोनल, ये सारे हमारे इंट्राओकुलर मसल्स हैं. ठीक है. आई के अंदर आइरस के अलग है. आइरस के स्फिंक्टर प्यूपिले और डायलेटर प्यूपिले थे. और सीलियरी बॉडी के अलग दो मसल्स हैं, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर. सो जब भी ये दोनों मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं? जब ब्रेन से इनपुट आता है, मतलब वॉलंटरी है. ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सीलियरी बॉडी को आगे और मीडियली की तरफ लेके जाते हैं. अगर ये सीलियरी बॉडी आगे और मीडियली जाएगी तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स खींच के रखे हुए हैं ये थोड़े ढीले हो जाएंगे. So shape of the lens changes and the curvature increases. So as you can see, इस first और second diagram में इसका flat है और इसका it becomes more convex. And this ciliary body has moved forward and medially. तो ये ढीले हो गए और shape change हो गया. And that is through the parasympathetic input. अभी I'll be talking about the input. अभी सिर्फ basic कि सीलियरी बॉडी में क्या हो रहा है कि वो आगे मूव कर रही है. सो रिलैक्स स्टेट में स्फेरिकल शेप है क्योंकि वो खींच के रखा हुआ है. 70 suspensory ligaments attached radially around the lens pull the lens towards the outer circle.
ठीक है, एंटीरियर कोरॉइड और रेटिना के इंटरफेस पे अटैचमेंट है. कांस्टेंट टेंशन कीप्स द लेंस फ्लैट इन अ रिलैक्स स्टेट. रिलैक्स स्टेट मतलब जब हमारी आई दूर की चीज को देख रही है, मोर देन 6 मीटर अवे, तो इस वे से वो है कि जो भी लाइट है वो रेटिना पे फोकस होगी. बट अगर अभी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप्स या आईपैड्स या फोन्स पे देख रहे हो, तो अभी आप नियर बाय ऑब्जेक्ट से देख रहे हो. सो पहले लाइट डाइवर्ज कर रही है और फिर कन्वर्ज करना पड़ा है. तो वी आर यूजिंग this accommodation to see any close by object less than 6 meters. So when you gaze at a near object, the ciliary muscle contracts due to an input from the brain. तो जो मेरिडियोनल फाइबर्स हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी लिगामेंट इज पुल्ड मीडियली, ढीला हो जाता है. सर्कुलर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी जो उसका एक सर्कुलर वे से स्फिंक्टर लाइक एक्शन को लेसन कर देते हैं. तो दोनों वे से, एज आई टोल्ड यू, दो मसल्स हैं इसमें, सर्कुलर है या लॉन्जिट्यूडनल या मेरिडियोनल, दैट्स द सेम थिंग, लॉन्जिट्यूडनल. दोनों में से कोई भी या दोनों जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन में दोनों हो रहे हैं, सो द ciliary muscle is going to move medially and forwards. This pull on the ligaments is going to reduce, the pull on the lens is going to reduce, and the lens become more convex. So contraction of either of these two muscles or both pulls the ciliary body forward and inward, relaxes the ligaments, allows the lens to become more spherical. और मैंने शुरू में भी एक डायग्राम में बताया था कि दूर की ऑब्जेक्ट तो वैसे ही फोकस होएगा रेटिना में, और पास का ऑब्जेक्ट फोकस करने के लिए हमें या तो अपने आई का साइज चेंज करें, जैसा एक किसी फिश में होता है, बट हमारे पास क्या है, हम पावर ऑफ लेंस चेंज होती है. सो अगेन brought into focus at the retina. एंड क्योंकि वो क्यों स्फेरिकल हो रहा है, क्योंकि उसकी नेचुरल इलास्टिसिटी है, उसको खींच के रखा हुआ है, जैसे उसको ढीला छोड़ोगे तो वो कन्वेक्स हो जाएगा. ठीक है, दिस जस्ट शोइंग कि ये हमारा जो है ये कोरॉइड आ रहा है पीछे से. ठीक है, एंड इट इज मॉडिफाइड इनटू द सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी से सीलियरी प्रोसेसेस होते हैं, हमारा एक्वस ह्यूमर भी बनता है, और इसके से अटैच्ड है आपके ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो लेंस के को खींच के रख रहे हैं. नॉर्मल लेंस इज स्ट्रेच्ड, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, this ciliary body will move forwards and medially, and these ligaments will become lax and the lens will become convex. तो दूर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस हो रहा है वैसे ही, और पास का ऑब्जेक्ट वाया अकोमोडेशन. तभी कहीं बारी बहुत ज्यादा देर कुछ पास से देखने से आपकी आंखें दुखती हैं, बहुत क्लोज वर्क से, बिकॉज यू आर यूजिंग it is an active process, so muscular fatigue होने लगती है. This is not there in a number of your books, so I suggest कि आप ध्यान से इस पाठ को सुनो. ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है. आई एम गोना टेल यू पर्किंजे सैमसन इमेजेस, जो वो करके देखना चाहते थे कि कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से ये अकोमोडेशन हो रहा है. So this change in the curvature during accommodation कहाँ से हो रहा है? Anterior surface of cornea से, या anterior surface of lens से, या posterior surface of lens से. तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा और ये पता लगाया कि this accommodation is mainly via the anterior surface of lens. What you can see here is, क्या करेंगे, पेशेंट को एक डार्क रूम में बिठा देते हैं और उसको कहते हैं कि दूर का ऑब्जेक्ट देखो with your eyes completely relaxed. डार्क रूम है, ठीक है, और एक कैंडल लेके, एक लिट कैंडल है, उसको आई के पास रखना है. जो सब्जेक्ट है वो कैंडल की तरफ नहीं देख रहा है, ठीक है, ही इज जस्ट लुकिंग फार अवे. बाहर एक
डिस्टेंट पॉइंट पे फोकस करना है। अंधेरा है तो ऐसा कोई फोकस तो नहीं, बट इसको दूर देखना है। तो ये एक तो आई डायलेटेड है, वन थिंग यू कैन सी, प्यूपिल इज डायलेटेड क्योंकि अंधेरे में बैठा है, ठीक है। फिर एक लिट कैंडल है, उसको हम उसके आई के पास रखेंगे और हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वर है, दिस इज द ऑब्जर्वर, वो उसकी आंखों में देख रहा है कि इस कैंडल की इमेज क्या बन रही है। तो हमें आंखों में 3 इमेजेस दिखेंगी, ठीक है, 1 2 3। लेट मी शो यू अनदर डायग्राम, उससे थोड़ा क्लियर रहेगा। So what the subject is sitting in a dark room looking at a faraway object with the eyes relaxed. A lit candle, जलाई हुई कैंडल हम उसके आंख के पास रख के इमेजेस देखेंगे। तो अब एक इमेज एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया से बनेगी, एक एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस से, एक पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस से। तो हमें उस कैंडल की 3 रिफ्लेक्शंस या 3 परछाई नहीं, इमेजेस दिखेंगी उसकी आंख के अंदर। So you can see 3 candles inside the eye. ये anterior surface of cornea से है, number 1. ये anterior surface of lens से है, ये posterior lens से है। As you can see, final image is inverted. ठीक है, ये final image होती है और ये दोनों erect images हैं। तो हमें ये 3 उसकी आंखों में इमेजेस देखेंगी, 2 सीधी कैंडल और एक उल्टी कैंडल। फिर आप क्या पेशेंट को कहोगे या सब्जेक्ट को कि आप दूर देख रहे थे, तो आप कोशिश करो कि आप किसी पास चीज को देखने की कोशिश करो, नॉट द कैंडल, किसी भी पास चीज पे फोकस करने की कोशिश करो। तो वंस द सब्जेक्ट फोकसेस ऑन अ नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो क्या दिखा कि जो ये नंबर 1 और नंबर 3 थी इमेज कैंडल की, ये तो अपनी जगह ही रही, बट ये नंबर 2 मूव कर गई। इट बिकम्स शार्पर, क्लियरर एंड क्लोजर टू द नंबर 1 इमेज। तो इससे ये पता चला, क्योंकि ये एंटीरियर कॉर्निया से थी, ये पोस्टीरियर लेंस से थी, ये एंटीरियर लेंस से थी। सो एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस वाली इमेज ही मूव करी when the eye was accommodated. So this is the point जहां पे कर्वेचर चेंज हो रहा है और अकोमोडेशन हो रही है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? एंड these are called as the Purkinje-Sanson images based on the scientist who did this experiment. ठीक है, पेशेंट को एक अंधेरे कमरे में बिठाना है, ही इज टू लुक एट अ डिस्टेंट, मतलब कहीं दूर उसको अपनी आईज को फोकस करना है रिलैक्स स्टेट में। एक जली हुई कैंडल को पास लाना है, कैंडल की रिफ्लेक्शन देखनी है आंख के अंदर, 3 रिफ्लेक्शंस दिखेंगी, 2 इरेक्ट एंड एक इन्वर्टेड, एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। फिर पेशेंट को कहेंगे किसी पास की चीज पे फोकस करो। जैसे ही वो फोकस करेगा तो जो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस वाली इमेज है ये मूव करती है। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज शोइंग दैट अकोमोडेशन इज टेकिंग प्लेस। सो आई वांट, इससे तो मैं बहुत पूछती हूँ, ऋषिका त्रिपाठी। Yes, Rishika? Okay, Rishabh Singh. Yes, ma'am. Okay, Rishika. So ये concept of accommodation आपको समझ आया? Yes, ma'am. What do you mean by accommodation? Ma'am, accommodation involves altering the curvature of the lens so that we can focus on nearby objects. Yes, very well stated, that the ability to focus at different distances is the accommodation. तो दूर का हम वैसे ही focus हो जाता है, and पास की चीज को focus करने के लिए we change the anterior curvature of your lens, and that is accommodation. So एक और चीज, अगर आपने कभी किसी पास की चीज को focus करवाएगा तो कुछ और भी चीजें होती हैं
मतलब एंटीरियर कर्वेचर तो आपको दिखता नहीं है चेंज हो रहा है कुछ। अगर आपने किसी की आईज में देखा है और वो किसी पास की चीज को बिल्कुल फोकस कर रहा है, तो कुछ और दिखता है आपको उसकी आईज में, बाहर से देखने वाला, ऑब्जर्वर रिलेटेड। थिंक उसकी आईज क्या कन्वर्ज करती हैं? ऐसा लगता है कि वो पास का ऐसे करके फोकस कर रहा है, उसकी आंखें बीच की तरफ आ रही हैं। Have you ever noticed this? All of you try to see. बाद में once this lecture finishes, try करना if you have somebody in your house कि वो कहीं भी दूर देख रहा है, और फिर उसको कहना कि किसी पास चीज के ऑब्जेक्ट, मतलब you just tell the person to वो एक तो स्पेक्स वगैरह उतार के, so he is looking far away. आप उसकी आईज के अंदर देखना। सो वेल लिट रूम होना चाहिए कि आप उसकी आई में लाइट नहीं डाल रहे, बट आपको उसकी प्यूपिल और सब कुछ दिखना चाहिए, और एकदम से आप उसको कहना कि मेरी फिंगर की तरफ फोकस करो। सो व्हाट यू सी इज योर आईज आर कन्वर्जिंग, सो देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ मीडियल रेक्टस, और जो प्यूपिल होता है आई का वो भी कंस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई एंड ऑब्जर्व दैट। थैंक यू ऋषिका, विल कंटिन्यू फॉरवर्ड। सो ये तो सिर्फ अकोमोडेशन था कि एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, ये तो आपको नहीं दिखता है किसी की आईज में, बट आपको ये दोनों चीजें दिखेंगी, कन्वर्जेंस ऑफ द मीडियल रेक्टस एंड कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। नाउ कमिंग टू कि इसका नर्वस वो कैसे है। What I've shown here is the autonomic innervation of the eye. एक मिनट, नित्या लुल्ला, नित्या, Yes, ma'am. या नित्या, हमारे एएनएस का क्या दो मेन कंपोनेंट्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के? Sympathetic and parasympathetic. वेरी गुड, ठीक है। तो स्कूल में पढ़ा है या अभी अभी आपका एएनएस का तो लेक्चर नहीं हुआ होगा? नहीं, ma'am. Have you had an ANS lecture? No. Okay, you'll be having it soon. So, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic हम fight or flight, and parasympathetic is your rest and digest. But इनका जो pre-sympathetic और parasympathetic, have you any idea कि कुछ difference होता है इनके fibers में? Pre-sympathetic and मतलब pre-ganglionic sympathetic and post-ganglion, कुछ ganglion है, कुछ idea है इसके बारे में? Neurotransmitters different होते हैं and Yes, very sympathetic good. ganglia are closer to the spinal cord while in Yes. parasympathetic further So, away. as she said, sympathetic, just be along with me. Sympathetic का जो ganglion है वो बिल्कुल हमारी स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। तो जो प्री सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक के, वो छोटे होते हैं क्योंकि निकलते ही गैंग्लियन में चले जाते हैं, और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स लंबे होते हैं। ठीक है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है। आई में उल्टा है कि सिंपैथेटिक इज कॉजिंग व्हाट? टेल मी, मिड्रियासिस या मायोसिस? अगर आप किसी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में चाहते हो भागना, अगर आप भाग रहे हो किसी से, तो आप चाहते हो कि आपको ज्यादा दिखे या कम एरिया दिखे? ज्यादा dilation. डायलेटेशन, ठीक है, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? मिड्रियासिस या मायोसिस? Midrias. यस। और तो सिंपैथेटिक इनपुट से मिड्रियासिस होता है, एंड पैरासिम्पैथेटिक से क्या होता है? Meiosis. मायोसिस, कंस्ट्रिक्शन। पैरासिम्पैथेटिक का क्या है? हमारे यूजुअली थर्ड, टेंथ नर्व इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट थर्ड नर्व से भी होता है पैरासिम्पैथेटिक इनपुट। So we have this third nerve nucleus, Edinger-Westphal nucleus. Third nerve कौन सी है? Oculomotor. Very good. And ये number 2 भी लिखी हुई है यहाँ पे। Number 2 कौन सी है? Optic. Yes. Optic is carrying the signal from the eye to the brain. ये third nerve nucleus क्या कर रही है? ये parasympathetic fibers ला रही है brain वापस eye में। So ये preganglionic fibers है, preganglionic parasympathetic, जो ciliary ganglion में करेंगे, और फिर parasympathetic. Thank you so much. You were very helpful. You can mute yourself.
Thank you, ma'am. So we have the sympathetic, and the parasympathetic. Sympathetic is from your T1 mainly. T1 से cervical ganglion में आएगा. ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, छोटे होते हैं. फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जो लंबे हैं, अगेन आई में जा रहे हैं. ठीक है, causing mydriasis mainly. So what is this showing कि ये ब्रेन में सिग्नल जा रहा है. अभी we'll be doing the visual pathway. शॉर्ट में ऑप्टिक नर्व, क्योंकि थोड़ा सा पता होना चाहिए, बट अभी हम ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियाज्मा, optic tract, then we have the lateral geniculate body thalamus, and then finally the cortex, और mainly occipital cortex में जाता है पीछे. ठीक है, ये हमारा प्राइमरी विजुअल एरिया है. तो लाइट जब आंखों पे पड़ती है, अभी क्योंकि मैंने रेटिना वाला पार्ट नहीं पढ़ाया, आज हम ऑप्टिक्स कर रहे हैं. ऑप्टिक नर्व, कियाज्मा, ट्रैक्ट, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स. तो ये ब्रेन में जाता है. ठीक है, वहां से कई बार फ्रंटल कॉर्टेक्स से, एज वील बी टॉकिंग अबाउट दिस अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, वापस आता है इनपुट टू द थर्ड नर्व न्यूक्लियस. दिस इज द थर्ड नर्व. एज शी टोल्ड अस, इट इज द ऑक्यूलोमोटर नर्व. ठीक है, हमारी सेंसरी नर्व यहाँ पे ऑप्टिक है, एंड वी हैव oculomotor जिसमें से accommodation है, एंड हमने अपने एक्स्ट्राओकुलर मसल्स भी करे थे, medial rectus, lateral rectus, superior, inferior, superior oblique, inferior oblique, and I told you the mnemonic SO4 and LR6. So lateral rectus 6th nerve abducens, superior oblique 4th nerve trochlear, and rest all are supplied by oculomotor. ठीक है, सो ये आपके प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं. पैरासिम्पथेटिक सीलियरी गैंग्लियन में synapse, and then post ganglionic fibers हैं, which are going to 3 places mainly. One to the ciliary body, then तो ciliary body पे जाएंगे तो क्या करेंगे, ciliary muscles के contraction causing a change in the shape of the anterior surface. फिर जाएंगे medial rectus को करते हैं convergence और sphincter pupillae of your iris. उसके पास जाएंगे तो क्या करेंगे, constriction of pupil. ठीक है, accommodation is a process of focusing a nearby object onto your retina by changing the curvature of the anterior surface of lens, and it is initiated via the third cranial nerve and via the parasympathetic nerve signals. Causes contraction of the ciliary muscle. Ciliary muscle आगे और forward move करता है, forward and medially, and causes a relaxation of your suspensory ligaments. Increase curvature of the lens, increase the power of the lens, and you can focus a nearby object more clearly. So ये अभी जो मैंने parasympathetic nerve signals दिखाए थे, जो हमारे third nerve nucleus, Edinger-Westphal nucleus से आ रहे हैं. Preganglionic parasympathetic input जो ciliary ganglion में synapse कर रहा है, वहां से post ganglionic parasympathetic fibers जो आपके ciliary muscle में supply कर रहे हैं. It takes less than a second. Microseconds में बात होती है. And also this parasympathetic impulses अगर एक लेवल पे है, they can continuously keep increasing. Number of these impulses are increasing as the object is moving closer to us. So you can continue to keep this object in focus. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 5 मीटर वाली चीज को फोकस पर रखती हूँ, मैं 4, 3, 2, 1, बट बहुत क्लोज करोगे अपने आई के पास, अपना कोई भी हाथ रखो बहुत क्लोज, you will not be able to focus. The nearest point that is can be focused on the eye is called as the near point, and जो दूर की चीज जो फोकस हो जाती है, that is called as the far point of your eye in a normal emmetropic eye. So
Accommodation is to focus the nearby object, and this is via the parasympathetic nerve signals, and these parasympathetic impulses can continuously increase depending upon कितना हमें चाहिए उसकी power to keep the object constantly in focus. As I told you, firing of the parasympathetic nerves कहाँ से जाएंगे? Edinger-Westphal nucleus to ciliary ganglion, and then finally to the ciliary muscle. Contraction of the ciliary muscle, movement of this muscle forward and medially, relaxation of the suspensory ligaments or the zonular fibers, relaxation of the lens, it becomes more spherical, near objects brought into focus. And these parasympathetic impulses can continuously increase as required. So that is accommodation per se, and we have a complex phenomena called as near response. Just give me a second. So near response is when you focus your eye on a nearby object. Excuse me. So तीन चीजें होती हैं, as I told you. It's a 3-part response on focusing on a near object. As I told you, accommodation आता है question. Mostly accommodation reflex. Near response is also called as the accommodation reflex. ठीक है? So this is the common short node LQ आता ही है, mostly short node. ठीक है? उसका ये जो अभी accommodation पढ़ाया था, ये सब इसके अंदर included है, because this 3-part response का first part is accommodation. ठीक है? आपको pathway सब कुछ बताना है. Contraction of the ciliary muscle. Second is, as I told you, आप देखना एक दूर की object पे focus करके और फिर पास की चीज पे, and you observe the eyes of this subject that you are doing this in, and you will see convergence of the visual axis. You'll be able to see that as जब वो पास की चीज पे focus कर रहा है तो उसकी जो visual axis पहले ऐसे है और ऐसे हो. Contraction of the medial rectus and pupillary constriction. You will be able to see the size of the pupil decreasing. So all of you please try this, and it's a 3-part response, or the accommodation reflex or the near response, in which we have accommodation जो कि नहीं दिखती unless you see the Samson Purkinje images. आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ciliary muscle contract करके anterior surface of lens change हो रही है. But convergence of the visual axis, that is medial rectus, मतलब जब convert करेगा तो आपको axis दिखेगी अंदर हो. Constriction is easily seen. Light falls only on the center of the lens, decreases the amount of light entering. This we've already discussed in our last lecture. Spherical aberrations कम हो जाती हैं क्योंकि light सिर्फ बीच से जाती है. Spherical aberration is कि side of the lens and center of the lens का power different होती है. And chromatic aberration is कि जो light का color, red की refraction सबसे कम, blue की सबसे ज़्यादा, उसकी वजह से. तो अगर light बिल्कुल center से जाएगी, तो this error it is reduced. Accommodation reflex का pathway आना ही पड़ेगा. ये जो शुरू वाला pathway है, as I told you, this is the visual pathway which we'll be discussing in our next lecture. I've already told you in short: optic nerve, chiasma, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body, and then visual cortex, which is in the occipital area, occipital pole, primary visual area और area 17. ठीक है, अभी ब्रेन वाले पार्ट में हम ज्यादा नहीं आए हैं. वहां से frontal eye fields आता है area 8. From here, as I told you, अगर ब्रेन से आ रहा है तो कॉर्टेक्स से आ रहा है तो कॉर्टिको और न्यूक्लियस पे जा रहा है. कौन से न्यूक्लियस पे जा रहा है? एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. तो कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर से
थर्ड नर्व न्यूक्लियस पे आता है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, जहां से हमारे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं जो कहां पे जाते हैं, सीलियरी गैंग्लियन। वहां से कहां जाते हैं, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स जो जाते हैं सीलियरी मसल पे, causes contraction of the ciliary muscles, meridional as well as the circular ones. तो ciliary body move करती है, suspensory ligaments ढीले होते हैं, curvature change होता है। sphincter pupilla पे जाता है, iris के मसल पे, जहां से constriction होती है pupil की, and medial rectus पे जाता है। medial rectus जब contract करेगा तो eyes बीच की तरफ आएंगी, convergence of your visual axis. So 3-part response: accommodation, convergence of visual axis, and finally constriction of pupil. And this is all brought about this pathway ki information pehle brain pe jayegi, then via the frontal eye field, corticonuclear fibers to the Edinger-Westphal nucleus, and then finally to the ciliary ganglion and to the 3 muscles. Just showing the same thing. ये आपका optic pathway है, optic nerve, chiasma, optic tract, lateral geniculate body, then optic radiation से visual cortex जो occipital lobe से है, यहाँ से frontal eye fields से Edinger-Westphal nucleus, that is the third nerve nucleus, preganglionic fibers, parasympathetic, this is the ciliary ganglion, postganglionic, इसमें उल्टा होता है, preganglionic लंबे होते हैं, postganglionic छोटे होते हैं, postganglionic fibers तीनों जगह जा रहे हैं, ciliary body पे, medial rectus पे और sphincter pupilla पे। ठीक है? Any doubt till here? Because this is an important exam question. Then this reflex is bilateral. That is, if we focus at a near object with one eye closed, अगर हम एक आंख बंद करके भी focus करेंगे, तो जो ये pupillary constriction और visual axis, ये आपको दोनों आंखों में दिखेगा। Anterior surface भी change होगा, पर वो दिख नहीं रहा है। It is an active process requiring muscular effort. So बहुत देर TV देखना, iPad, phones पे खेलना, they can be tiring and produce headache due to a muscular fatigue. So the nearest point मैंने बताया था which can be focused. अगर मैं बिल्कुल अपने face के पास रख लूंगी हाथ तो मुझे नहीं दिखेगा clearly. But if I move it further, there's a point where I can see this image clearly. So the nearest point to the eye which an object can be clearly focused by accommodation is the near point of vision. आपने ये कभी नोटिस करा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्कुल बुक के पास रख के पढ़ते हैं, वो ऐसे पढ़ रहे होते हैं, फिर हम जो नॉर्मल एडल्ट्स वी विल बी रीडिंग इट एट अ comfortable distance, which is your reading distance is approximately 25 centimeters. And कोई आप बूढ़े लोगों को देखना अपने घर में जो अगर वो पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर या कुछ भी, वो थोड़ा सा दूर रख के पढ़ेंगे. So this is the nearest point of vision. It recedes throughout life because elasticity lens की change होती रहती है. So 10 years पे approximately it is 10 centimeters. 45 years पे थोड़ा सा difficulty आने लग जाता है doing close work, 45 centimeters होता है. 60 years पे 83 centimeters. So this or far point, this is a near point. Near point is receding throughout life. Far point is infinity. More than 6 meters हम उसको infinity मानते हैं, focused on the retina. So near point recedes slowly as the age advances due to loss of elasticity. As you can see here, ये 10 साल का बच्चा है, ये बिल्कुल पास रख के कर रहा है, ये normal reading distance पे रख के कर रहा है. फिर as you're going further, जब भी 30 सेंटीमीटर से दूर होता जाएगा, तो close work करना थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा. उससे पहले accommodation कम तो हो रही है, but हमें bother नहीं कर रही. आपकी accommodation power भी जब आप 10 years से थे उससे कम है, but it does not bother you. But as you continue to grow, this will start bothering and it will be difficult to see near objects, and near point recedes throughout life, and this
loss of accommodation as increase age is called as presbyopia. ये भी पूछा जाता है, या accommodation का अगर short note आएगा तो applied aspect लिखना ही लिखना है. So you have to write presbyopia. Accommodation पे अगर short note है. Loss of accommodation with increasing age. Lens becomes thicker, less elastic, proteins denature. तो shape उसकी change होनी decline कर जाती है. Child में अगर amplitude, this is the amplitude of accommodation that we're talking. या तो near point के terms में हम बताते हैं या amplitude of accommodation. Amplitude of accommodation मैंने बताया था difference in the power of the eye जब वो बिल्कुल relaxed है और या जब बिल्कुल convex है. So that is the amplitude. Maximum accommodation और बिल्कुल मतलब relaxed के बीच का क्या difference है. तो बच्चों में 20 से 34 diopters तक change हो सकता है, 14 diopters. 45 years में 2, 4, it varies, and 60 years and above 0 diopters. Eventually, पहले तो near vision का loss होता है, but eventually the eyes become focused permanently at a constant distance, and there's loss of distant and near vision. And treatment is ideally a bifocal glasses. उसका ऊपर segment में हम far side के लिए lens लगाते हैं और lower में near के लिए, तो bifocal lens लगती है. कई जगह पे कन्वेक्स से भी थोड़ा ट्रीटमेंट हो पाता है, तो प्रेस बायोपिया. ठीक है, दिस इज जस्ट शोइंग कि द नॉर्मल रीडिंग डिस्टेंस यू विल सी इसको थोड़ा दूर रख के पढ़ रहा है. ठीक है, रिसीडिंग ऑफ दिस नियर पॉइंट विद इंक्रीजिंग एज या एम्पलीट्यूड ऑफ अकोमोडेशन कम हो रहा है विद इंक्रीजिंग एज is called as presbyopia, treated by a bifocal glasses. Coming to the second part, ये थोड़ा सा छोटा है, that's why I'll be dealing with this. Functions, so we've already covered number of times. Errors of refraction, again I'm expecting you to know them, so हम जल्दी से करेंगे. Myopia, hypermetropia, and then one more thing here, presbyopia तो हम कर चुके हैं, and astigmatism. Then we just have a few slides on cataract. What is visual acuity and depth perception? Okay. Functions we've already covered a number of times. Controls the amount of light entering the eye. Size of the pupil increases in darkness, mydriasis, decreases in bright light or parasympathetic meiosis. ठीक है. So pupil का size change हो जाता है 1.5 millimeters से 8 millimeters तक का, and this can change the amount of light entering by 30 times. छोटे अपर्चर से ग्रेटर डेप्थ ऑफ फोकस है. ये भी मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई चीज मूव भी कर रही है तो भी वो फोकस में रह रही है, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेटिना से भी कितने मिलीमीटर रेटिना शिफ्ट होने पे भी हमारा वो ऑब्जेक्ट फोकस में रहता है. सो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फोकस इज व्हेन द pupil is pinpoint. This is just showing, दोबारा मैं थोड़ा क्विक रिविजन. This is when the pupil is dilated. तो इधर से भी लाइट आ रही है, इधर से भी आ रही है. अब यहाँ पे फोकस है, थोड़ा सा भी इधर आगे पीछे गए तो ब्लरिंग हो जाएगी. अगर बीच से या कम एरिया से लाइट अंदर आ रही है, सो यू कैन सी इस पूरे एरिया में भी अगर आप थोड़ा सा भी मूवमेंट होएगा तो भी जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस में रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज द डेप्थ ऑफ फोकस. Decreases spherical and chromatic aberrations. क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव पावर पूरा सेम नहीं होता, पेरिफेरी का थोड़ा कम होता है सेंटर से. अगेन अगर सेंटर से ही लेंस के अंदर आ रही है लाइट तो ये नहीं होएगा. ठीक है. क्रोमैटिक एबरेशन इज कि अलग अलग कलर्स की डिफरेंट रिफ्रैक्शन होती है. रेड लाइट लॉन्गर वेवलेंथ, रिफ्रैक्टेड द लीस्ट. ब्लू लाइट शॉर्टर wavelength, refracted the most. So this is spherical की sides और center की power अलग है. Chromatic is कि
कि अलग अलग जो कंपोनेंट्स है लाइट की उनकी अलग रिफ्रैक्शन हो रही है, और अगर हम सेंटर से करते हैं तो जो ये डिफेक्ट होता है ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, कमिंग टू द थिंग विच आई एक्सपेक्ट कि तुम सबको आता है, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, मायोपिया या एरर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइपरमेट्रोपिया। नॉर्मल विजन को हम कहते हैं इमेट्रोपिया। इसका क्या मतलब है? when your eyes are relaxed and when a light is coming from more than 6 meters away, then they are brought into focus at the retina, and अगर 6 meters से कम है तो by accommodation, ठीक है, and focus on the retina only, ठीक है। so normally पास की चीज भी क्लियर दिख रही है, दूर की चीज भी क्लियर दिख रही है इन इमेट्रोपिया या नॉर्मल विजन। दिस इज इमेट्रोपिया। हाइपरओपिया और हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, इसमें क्या है कि या तो हमारी लेंस वीकर है या आईबॉल छोटा है, तो जो फोकस हो रहा है वो हमारी लेंस के पीछे हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं तो हमें दूर की चीज तो मतलब, बट हमें नहीं फोकस हो पा रहा, ठीक है, फार साइड। दिस इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस, एंड मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार साइटेडनेस। इसमें या तो हमारा लेंस की पावर ज्यादा है या आई ज्यादा लंबा है, तो फोकस हो रहा है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, हाइपरमेट्रोपिया में फोकस इज बिहाइंड द रेटिना, मायोपिया में इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। majority of you will be suffering from myopia, ठीक है, और old age में usually hypermetropia after about 40. so myopia, also called as nearsightedness, is कि पास की चीज तो ठीक से दिख रही है, ठीक है, AP diameter is either too long या लेंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वो ज्यादा फोकस कर रही है और वो रेटिना के आगे फोकस कर रही है। इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है। यूजुअली जिन फैमिलीज में होती है, कईयों की बहुत हाई पावर्स होती है और जल्दी बचपन में हो जाती है, बट इट इज हैस्टन बाय क्लोज वर्क। तभी आपको कहा जाता है कि यू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम। अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस कोविड वी हैव really increased the screen times of all of you, but can't be helped. Hopefully we'll be seeing you soon again. So image is formed in front of the retina. अब हम स्ट्रेंथ तो कम नहीं कर सकते लेंस की, तो हम क्या करते हैं, हम फार पॉइंट तो हमें वो हो रहा है, एंड नियरर टू दिस इमेज कैन बी फोकस, बट हमें दूर की चीज नहीं ठीक से क्लियर दिख रही, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, हम उसके सामने एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, जो मोस्टली आप लोगों ने सबने चश्मे पहने हुए हैं, उसकी माइनस पावर है। कॉनकेव लेंस है, वो क्या कर रहा है, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है बिफोर दे हिट योर आई, फिर जो आपकी आई की नॉर्मल पावर है उससे वो रेटिना पे फोकस हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल साइट इज कि फार अवे ऑब्जेक्ट ठीक दिखता है। मायोपिया इज कॉल्ड एज नियर साइटेडनेस, या तो आईबॉल बहुत लंबा है या लेंस की पावर बहुत ज्यादा है, तो फोकस इज इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब हमने क्या करा, एक कॉनकेव लेंस लगा दी आगे। इट इज फाउंड आउट बाय ट्रायल एंड एरर ओनली। आपने बहुत लोग गए होंगे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के, वो आपको अलग अलग लेंस दिखा के चार्ट पढ़ाता है, एंड जो बेस्ट सूटेड होता है उससे हम पावर निकालते हैं। सो इट डाइवर्जेस and then they will converge, so the focus will be on the retina. And powers can change, so you have to get your eyes tested. And usually जब आपकी आंखों के ये कोई पावर चेंज हो रही है तो usually you get a headache. One of the common signs is headache, क्योंकि आपकी आंखें accommodation को यूज कर रही हैं फोकस करने के लिए। सो या आपको क्लियर नहीं दिख रहा, नियर साइटेड में ज्यादा नहीं, बट उसमें हाइपर ओपिया में ज्यादा accommodation से headache is a common symptom. Hypermetropia is called as farsightedness. दूर की चीज अच्छे से दिख रही, पास की। eyeball is shorter than normal, lens is weaker than normal. तो लाइट रेज क्या हो रही है, बिहाइंड द रेटिना। अब हम कुछ चीज क्या कर रहे हैं, कुछ चीज को हम अकोमोडेशन से फोकस करी जा रहे हैं, बट अब
नॉर्मल चीजों को देखने के लिए भी जो दूर की चीजें नॉर्मली इमेट्रोपिक आई को अकोमोडेशन नहीं यूज करनी पड़ती, पर इन्हें यूज करनी पड़ रही है। तो टायरिंग है, मस्कुलर एफर्ट है। Headaches, blurred visions, squint, strabismus is also called when the two eyes are not in conjunction. So treatment is convex lens. ठीक है, नॉर्मली दूर की चीज को देखने के लिए भी हमें अकोमोडेशन करके हम फोकस कर पा रहे हैं, बट वैसे वो पीछे फॉर्म कर रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया जो कन्वर्ज कर रही है और फिर आपके रेटिना पे फोकस हो रहा है। ठीक है, I'll just wait a few seconds for you to see this slide. कई बार differences आते हैं, so better to note it down. Emmetropic में focused on retina, in front of retina, behind retina. इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, या तो डायमीटर ज्यादा है या पावर ज्यादा है, डायमीटर छोटा है या पावर कम है। फार पॉइंट नॉर्मली इज इंफिनिटी मोर देन 6 meters. मायोपिक में नहीं है ऐसा, इसमें इंफिनिटी है। नियर पॉइंट इसमें 10 centimeters है, इसमें ज्यादा पास है, ज्यादा पावर है, इसमें मोर है, तो नियर पॉइंट इज फर्दर अवे। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए नॉर्मली अकोमोडेशन नहीं यूज होती, बट हाइपरमेट्रोपिक में क्योंकि ऑलरेडी उनकी इमेज पीछे बन रही है तो उन्हें अकोमोडेशन करनी पड़ रही है। सो इट कैन बी टायरिंग, लीडिंग टू हेडेक्स। नॉर्मली करेक्शन नहीं है, कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। आई हैव कम टू दिस पॉइंट द लास्ट। अगर नॉर्मल पर्सन की आई को इमेट्रोपिक आई है और उसे प्रेस बायोपिया होता है तो उसे बाइफोकल लेंस चाहिए। अगर मायोपिक आई में प्रेस बायोपिया हो रहा है तो दैट इज इलास्टिसिटी कम हो रही है, ऑलरेडी इसकी पावर ग्रेटर है, तो कई बार एक टाइम आता है कि करेक्शन नहीं चाहिए और फिर फाइनली चाहिए होगी। हाइपरमेट्रोपिक में ऑलरेडी अकोमोडेशन यूज कर रहा है तो इट नीड्स करेक्शन अर्लियर। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? Okay, I don't see any hands raised or anything. So, and I think this is one of the easier part of your lecture because ये तो आप सबको पता ही है and you've been learning about this forever, myopia, hypermetropia. ठीक है, तो इतना मैं डिटेल में नहीं इसको बता रही। Let's go forward. एक और चीज होती है astigmatism. Let me ask one of you. बहुत देर से मैं अस्तित्व मित्तल। Yes, अस्तित्व. Unmute yourself, please. Akshay Kumar, can you unmute yourself? Yes, ma'am. Okay, Akshay Kumar, astigmatism सुना है? Ma'am, abnormal curvature of the lens. Okay, कुछ नॉर्मली भी होता है कि हमारा वर्टिकल कर्वेचर और हॉरिजॉन्टल कर्वेचर में कुछ फर्क होता है? I don't know. Okay, चलो, नो प्रॉब्लम अक्षय, थैंक यू। सो ही इज राइट कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, the light rays are not brought to a point focus because the curvature of the cornea is not uniform. ठीक है, rays get refracted to different foci. एक साइड में ज्यादा हो सकता है, कहीं पे कम है, so refractive curvature नॉर्मल नहीं है तो फोकस एक जगह पे नहीं हो रहा है, तो अलग अलग जगह पे फोकस हो रहा है। यूजुअली एक प्लेन में फोकस ठीक होता है और एक में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो ब्लर्ड इमेज। रेयरली की कर्वेचर ऑफ लेंस में भी प्रॉब्लम, यूजुअली कॉर्निया के
कर्वेचर का इशू होता है, बट लेंस के कर्वेचर में भी प्रॉब्लम अगर होगी, सो इन एस्टिग्मेटिज्म रेज आर नॉट रिफ्रैक्टेड टू अ सिंगल पॉइंट फोकस, अलग अलग फोकस बन रहा है। एक फिजियोलॉजिकल एस्टिग्मेटिज्म, एज आई वाज आस्किंग हिम, नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि हमारा वर्टिकल कर्वेचर क्या हो रहा है कि हमारे आई बॉल, अगर आप देखोगे अपनी आई को, तो ऊपर से आपका ऑर्बिट और वो सब उसको नीचे की तरफ पुश करता है। वर्टिकल कर्वेचर is usually greater than your horizontal curvature. That is physiological astigmatism. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर एक साइड से एक पॉइंट पे फोकस हो रहा है और दूसरे 90 डिग्रीज पे डिफरेंट पे फोकस हो रहा है, so when the light is not focused at a single point, then it is called as astigmatism, and it is usually due to an abnormal curvature of the cornea. इसके अलग अलग नाम है, विद द रूल, अगेंस्ट द रूल। मैंने आपको बताया था नॉर्मली भी एक्सक्यूज मी, वर्टिकल कर्वेचर इज मोर, क्योंकि ऊपर से आई पुश हो रही है तो वो ऐसे ज्यादा कर्व हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल कम होता है। सो विद द रूल इज कि अगर वर्टिकल कर्वेचर इज मोर देन हॉरिजॉन्टल कर्वेचर, अगेंस्ट द रूल इज वर्टिकल कर्वेचर इज लेस देन, सो ये ऐसे कह रहे हैं कि ये कर्वेचर इज मोर देन ऐसा वाला हॉरिजॉन्टल, and vertical is less. Well, I'm just saying, obviously the diagram, abhi aage ek diagram I'll show you. Index astigmatism is कि अलग अलग पार्ट के लेंस का अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. This is usually due to malposition of lens. ये लेंस की वजह से होता है. Index is so usually curvature astigmatism या index astigmatism में डिवाइड करा है. Curvature है कि curvature of cornea अलग है. Usually vertical more than horizontal, that is with the rule. Vertical less than horizontal is against the rule. Index astigmatism is refractive index of different parts is different, as you can see. So दो different powers हैं, two different axes में. So usually इसमें cylindrical lens लगता है. Uneven surface of cornea. So इसे curvature astigmatism करते हैं, जो कि ज्यादा common है. With the rule is कि ये जो है vertical, ये ज्यादा है than horizontal, और normally भी vertical ज्यादा होता है because ऊपर से eyeball इसे, मतलब ऊपर से जो orbital ridge है वो उसको push कर रही है. Against the rule is कि जो horizontal curvature है ये ज्यादा है as compared to the vertical curvature. ठीक है, लेंस के डिफेक्ट से इंडेक्स एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं. एंड उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इमेज ठीक से उसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ द लेंस, मैल पोजिशन ऑफ द लेंस की वजह से होता है, नहीं दिख पा रहे, मतलब अलग अलग वो हैं. और इसमें यूजुअली क्या डायग्नोस्टिक फीचर है कि आप ग्राफ पेपर में ऐसे ऐसे भी लाइंस हैं और ऐसे ऐसे भी लाइंस हैं, तो यूजुअली दे हैव अ डिफिकल्टी इन सीइंग द ग्राफ पेपर. क्लियर नहीं दिखता ग्राफ पेपर. Correction is by a cylindrical lens. This is just showing कि एक डायरेक्शन में यूजुअली इमेज ठीक है और एक में तो थोड़ी फजी है. सो करेक्टेड विजन में हम सिलेंड्रिकल लेंस देंगे उसको. एंड कईयों में क्या होता है, एज यू कैन सी, थोड़ा सा आपको इसमें पता चल रहा है कि वर्टिकल लाइन ज्यादा ब्लर्ड है और इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ज्यादा ब्लर्ड है. तो डिपेंड करता है कि आपका जो कौन सा कर्वेचर ज्यादा है या कम है. और काफी लोगों में वंस यू नो आप लोगों ने अपनी स्पेक्स बनवाई होंगी तो उसमें आपको वो सिलेंड्रिकल पावर भी देते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट इज सिलेंड्रिकल लेंस. स्फेरिकल लेंस करेक्ट्स द फोकस और स्ट्रेंथ, एज जैसे हम नॉर्मल लेंस का स्ट्रेंथ लेते हैं, हम उसको ट्रायल एंड एरर से अलग अलग लेंस डालेंगे जिससे सबसे क्लियर दिखेगा. फिर सिलेंड्रिकल उसके सामने डालेंगे और कहेंगे कि सारे प्लेन्स ठीक से दिख रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो पहले एक प्लेन का पावर चेक करेंगे, फिर दूसरे आपने सबने जिसने भी आईज चेक कराई है दे नो कि पहले वो आपको अलग अलग लेंस आपके आईज के आगे डाल के, जब आपको दिखता है फिर वो एक और उसके सामने लेंस, वो लेंस लगे रहने के बाद एक और लेंस देख के आपको पूछता है कहाँ पे शार्पर इमेज दिख रही है.
So it equalizes the refraction in all meridians. So a cylindrical lens will have the power also, strength, plus minus point so and so, plus the axis 90 degree. ये एस्टिग्मेटिक डायल है. तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को ये दिखाते हैं. पहले हम उसे कहते हैं कि एक, जैसे अगर मैंने उसको कहा कि ये आप अच्छे से फोकस कर लो, और ये यूजुअली उसे ब्लर दिख रहा होगा. फिर हमें उसकी पावर पता चल गई. फिर हम एक और सिलेंड्रिकल लेंस डाल के उसको घुमाएंगे, और जहां पे उसको ये सारी लाइंस क्लियर दिख रही हैं, that is his cylindrical power also. So that is astigmatism. The image is not brought to a point focus mainly due to a defect in the curvature. तो कॉर्निया के curvature में with the rule, against the rule. With the rule is vertical more than horizontal, against the rule is horizontal more than vertical, and index astigmatism is mainly due to defect in the lens, जिसमें malposition. Index astigmatism में usually हम contact lens देते हैं. ठीक है, contact lens you all must have heard, some of you may be wearing it also. So इसमें क्या करना है, पावर लेंस की पता चलती ही है, चेक करके ही निकलती है. And you're wearing it directly onto your cornea. And of course solution भी होता है to keep it wet. Snug है तो thin layer of tear fluid है. तो रिफ्रैक्शन एंटीरियर कॉर्निया पे नहीं होती, अब इसकी एंटीरियर सरफेस पे होती है. यहाँ पे आपकी outer surface of this artificial lens becomes your chief refractive surface. केरेटोकोनस की ट्रीटमेंट में यही है, क्योंकि उसमें चश्मे से फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि आपका कॉर्निया की वही शेप का प्रॉब्लम है. ठीक है, चश्मा तो एक फिक्स्ड लोकेशन पे रहेगा. Obviously the broader field of vision, आपको जो साइड से जो डिफेक्ट है वो नहीं हो रहा, cosmetically it is better looking contact lenses. And now we have number of colors available. We have some people are wearing contact lenses just to give color to their eyes also. Then I'm just going to be a little faster with the few slides. Cataract. Cataract में क्या है, opacification of the lens. मतलब कोई एरिया हमारी लेंस ट्रांसपेरेंट है, कई पार्ट्स उसके ओपेक हो गए हैं और क्लाउडी हो गए हैं. एंड इट इज मेनली बिकॉज प्रोटीन है वो डीनेचर हो गया है, कोएगुलेशन हो गई है. कॉमनली ओल्ड एज में होता है, तो सिनाइल चेंजेस, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस, मतलब लेंस ओपेक हो गई है ट्रांसपेरेंट की जगह. अर्ली स्टेज में सिर्फ डीनेचरेशन होता है प्रोटीन का, लेटर में कोएगुलेशन हो जाता है और ओपेक हो जाता है. ओपेक क्लाउडी वाइटिश दिखता है आपको आईज में. तो ब्लड विजन है, and if not treated can lead to blindness. Treatment is surgery. अब बहुत सारे ways आ गए हैं. It's a day care procedure. आप जाते हो, वो लोग क्या करते हैं, ये लेंस को निकाल देते हैं, फेको से, लेजर से, हर चीज से है, and replace with a new implant lens. क्योंकि लेंस ही ओपेक हो गई है, अब उसको हम उसके प्रोटीन को वापस नहीं, once denatured it cannot. सो कैटरैक्ट विजन में क्या होता है, जहां जहां पे ओपेसिटीज है वो एरिया क्लियर नहीं दिखता, तो थोड़ा ब्लरिंग है. देन अनदर टर्म व्हिच इज आस्क्ड वाया प्रैक्टिकल, मेनली विजुअल एक्विटी. ये प्रैक्टिकल में बहुत पूछा जाता है और वाइवाज में बहुत पूछा जाता है, थ्योरी में भी कई बार इस पे आ जाता है क्वेश्चन. विजुअल एक्विटीज, कितनी साफ आपको एक चीज दिख रही है. ठीक है, डिग्री टू विच द डिटेल्स एंड कॉन्टूर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आप सी. अगर किसी ने कोई शर्ट पहनी है तो मुझे कितनी क्लियर दिख रहा है उस पे प्रिंट, उसकी फाइनर डिटेल्स, कलर, डेप्थ, सब कुछ, उसकी डिटेल्स कितनी क्लियर, उसके ऊपर जो प्रिंट बना है वो कितना फाइन. जैसे हम ये मैंने बताया था टीवीज का, कितनी क्लैरिटी है टीवी में, तो वैसे हमारी आईज की कितनी क्लैरिटी है. दैट इज योर विजुअल एक्विटी. डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम सेपरेबल डिस्टेंस. दो चीजें कितनी दूर होनी चाहिए कि मुझे पता चले कि वो दो है, नॉट अ सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम सेपरेबल डिस्टेंस. अब किसी पे चेक्स बने हैं तो कितनी फाइन चेक्स में मेरी आंखें देख पाती है. एंड ऑब्वियसली एज आई विल बी अगेन टेलिंग यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर, जब हम रेटिना का पेरिफेरी और सेंटर करेंगे तो हमारा एक टर्म मैंने बोली थी, फोविया सेंट्रालिस.
मैकुला लूटिया पे, जहाँ पे मैक्सिमम कोन्स है और 1:1 ट्रांसमिशन है और स्लेंडर है, वहां पे हमारी विजुअल एक्विटी इज द बेस्ट। एंड हमारी आईज जब भी किसी चीज पे फोकस करती हैं तो वो यही कोशिश करती हैं जो इमेज है वो फोविया पे फॉल करे। हमने बहुत से डिफरेंसेस करे थे कि यहाँ का कोन सिर्फ कोन्स है, रॉड्स नहीं है, 2 ही टाइप के कोन है, स्लेंडर कोन्स है, 1:1 ट्रांसमिशन है और ऊपर की लेयर्स हटी हुई हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ बेस्ट विजुअल एक्विटी। नॉर्मली मिनिमम सेपरेबल डिस्टेंस, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे आई पे जो एंगल बना रहा है उसे कहते हैं विजुअल एंगल, एंड नॉर्मली इट शुड बी 1 मिनट ऑफ एन आर्क। 1 डिग्री, लेट मी टेल यू, 1 डिग्री, डिग्रीज में तो आपको पता ही है, 190 degrees is perpendicular, 180, then 360. 1 degree has 60 minutes and 1 minute has 60 seconds. So normally 1 minute of an arc, और कई बुक्स में दिया हुआ है, नहीं कई बुक्स में अब 25 seconds भी दिया हुआ है, बट एवरेज सारी बुक्स में 1 मिनट दिया हुआ है। 1 मिनट ऑफ एन आर्क होना चाहिए, और रेटिना के लेवल पे कहते हैं कि जो इमेज बन रही है वो 2 माइक्रोमीटर्स अपार्ट होनी चाहिए, तो हमें लगेगा कि ये 2 चीजें हैं, नहीं तो वो हमें लगेगा कि वो एक चीज है। और कितना डिस्टेंस होना चाहिए, वो मैंने कहा है, ये जो एंगल बना रहा है वो 1 मिनट, कई बुक्स में 25 सेकेंड्स, ठीक है। एंड रेटिना पे जो इमेज है 2 माइक्रोमीटर दूर होनी चाहिए एक दूसरे से, देन इट इज परसीव्ड एज 2 images. Again, all of you know this. This is the Snellen's chart. Anybody who's got their eyes tested has seen this. तो हम इसको क्या करते हैं, 6 मीटर्स पे करते हैं। कई ऑप्टिशियंस के घर में आपने देखा होगा कि ना, उन्होंने पास रखा होता है और एक शीशा रखा होता है, तो that is just to increase the distance because this has to be kept at 6 meters away. और इनके ऊपर एक नंबर्स लिखे होते हैं, 60, 36, 24। नॉर्मली जो ये लास्ट लाइन है ये 6 लिखा होता है, मतलब 6 मीटर्स अवे अगर मैं बैठूं और एक एक आई ऑब्वियसली स्पेक्स हटा के एक एक आई कवर करके देखते हैं, तो ये लास्ट लाइन है, यू शुड बी एबल टू रीड दिस, एंड इफ यू आर एबल टू रीड दिस देन योर विजन इज 6/6। 60 का मतलब ये है कि नॉर्मली ये चीज 60 मीटर अवे से भी दिख जानी चाहिए आराम से, बट उस पर्सन को, तो हम उसको कहते हैं एक एक करके दोनों आंखों, मतलब एक एक आंख से पढ़ता है ऊपर से नीचे। अगर मैं इस लाइन तक पढ़ पाती हूँ तो दे से योर विजन इज 6/24 ऑफ योर राइट आई, फिर लेफ्ट आई का 6/18 ऑफ योर लेफ्ट आई। सो नॉर्मली ये इतने डिस्टेंस पे पढ़ना चाहिए, बट ये 6 मीटर पे पढ़ पा रहे हैं, एंड नॉर्मली emetropic eye would have been able to read the last line also comfortably, and then your vision is 6/6. So 6 meter or 20 feet पे डिस्टेंस रख के चश्मा उतार के एक एक करके आईज टेस्ट करते हैं। अब ये E is made in, these objects are made in such a way that इसका पूरे का 5 मीटर है, मिनट है, और इसकी हर पार्ट का, अब ये डार्क पार्ट का 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1, तो मतलब E बड़ा है या E लास्ट लाइन में सबसे छोटा है, तब भी मुझे E और F में कंफ्यूजन नहीं हो सकती, E और G में, H और H में। So they are made in such a way that each part is separate by 1 minute. So that is the visual acuity of the eye. ठीक है? And this is called the Snellen's chart. कई लोग होते हैं जो मतलब we have English में भी होता है, हिंदी local languages में भी होता है Snellen chart. There are some people who are illiterate. So we have the Landauer C या tumbling E या symbols या बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो उनको क्या कहना है कि किस तरफ इसका मुंह खुला है, नीचे, ऊपर, लेफ्ट, राइट, ठीक है। दिस इज द टम्बलिंग ई, लैंडॉट सी एंड लिया। सो पहले आप उसका विजन टेस्ट करोगे स्नेलन चार्ट से, अगर वो नहीं पढ़ पा रहा इवन लास्ट लाइन, तो आप क्या करते हो कि डिस्टेंस कम करते जाते हो। तो आप कह सकते हो 5/60, 4/60, 3/60, 2/60, नहीं हो पा रहा, तब भी नहीं पढ़ पा रहा वो ऊपर का सबसे पहला ई नहीं पढ़ पा रहा, तो आप क्या करते हो, उसके सामने खड़े होकर उससे फिंगर काउंटिंग करते हो, 1 फिंगर, 2, 3, 4, वो भी नहीं पढ़ पा रहा तो हैंड मूवमेंट, उसे
परसेप्शन है कि नहीं कि हाथ हिल रहा है, वो भी नहीं पता चल रहा, तो परसेप्शन ऑफ लाइट चेक करते हैं। ठीक है, यू यूजुअली प्रोसीड इन दिस फैशन। देन फॉर नियर विजन, ये अभी आपको प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा क्रेनियल नर्व्स में पढ़ाया जाएगा, जेगर्स चार्ट एंड स्नेलन चार्ट। इसमें भी उसको कंफर्टेबल रीडिंग डिस्टेंस पे 25 सेंटीमीटर्स वेल लिट रूम में एक एक करके आंखों से पढ़ते हैं। तो जिस पॉइंट तक वो पढ़ पाता है उसके प्रिंटर पॉइंट्स होते हैं, और आई का हम पावर बताते हैं। सो दिस इज फॉर नियर विजन, जेगर्स का चार्ट, एंड स्नेलन्स इज फॉर distant vision. There are many factors which can affect your visual activity. Optical, कि जो आपके कॉर्निया या लेंस था उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया तो नहीं है। रेटिना, as I told you, the center of the retina, the fovea centralis, has the maximum visual acuity as compared to the periphery. Stimulus factor, किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, यूजुअली उसका कंट्रास्ट क्या है। हम नॉर्मली कहते हैं ना कि अगर आप स्लाइड बना रहे हो तो लाइट बैकग्राउंड डार्क, जो हमारी कार की नंबर प्लेट्स हैं वो क्यों एक पर्टिकुलर कलर में दी जाती है, क्योंकि दूर से पढ़ी जानी चाहिए। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेंथ ऑफ एक्सपोजर, कितनी सेकेंड, अगर मैंने 1 सेकेंड दिखाया आपको बदल दिया तो आपको नहीं है कई बारी दिखेगा, कितनी देर के लिए दिखाया। तो साइज, कलर, इल्यूमिनेशन, brightness, contrast, length of exposure, all these factors make a difference. ठीक है, this is just an example I've shown you today's date. So best कहाँ दिख रही है? Black. So contrast is very important. The time, the color, the size, all these are also factors which will affect your visual acuity. Visual acuity is कि कितनी साफ आपको दिखता है, degree to which the contours and shape of the object can be clearly seen, and it is defined as minimum separable distance, which can still be viewed as 2. As I told you, 1 minute of the arc angle होना चाहिए at the eye, कहीं books पे 25 seconds लिखा है, और retina में 2 micrometer दूर होनी चाहिए, तब वो ऑप्टिकल फैक्टर्स हैं, रेटिनल फैक्टर्स हैं, स्टिमुलस के फैक्टर्स हैं। I wanted to do this depth perception also today. That was one of my last things for today, but I think we're running out of time. So in my next lecture, we will start with depth. So depth, I wanted to talk to you about depth. I don't want to do right now with you, and क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, उससे पहले मैं 2-3 और concept बता देती हूँ। Depth I'll do in my next class. फील्ड ऑफ विजन, एक हम बस लास्ट चीज, क्योंकि ये छोटी है, we'll just discuss this. अगर मैं किसी को बिठा रही हूँ चश्मा उतार के और मैं कह रही हूँ एक चीज पे फोकस करो, तो मुझे ये चीज तो दिख ही रही है, पर मुझे कुछ इसके साइड्स में भी चीजें दिख रही हैं। अब अगर आप अपना फोन देख रहे हो बट फोन के आगे पीछे साइड में भी कुछ हो रहा है, वो भी आपको दिख रहा है। The portion of the external world which is visible out of one eye when your gaze is fixed is your field of vision, and this again you will be doing this experiment which is called as perimetry. Perimetry means to chart the field of vision, and the instrument for that is the perimeter. So I want all of you to close one eye and then still focus on one object. तो आपको फिर भी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब जगह दिख रहा है। One thing that you can see is कि laterally आपको ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है टेम्पोरली। साइड्स में आपको ज्यादा दिख रहा है, मीडियली क्योंकि आपका नोज है तो आपको 60 डिग्रीज तक ही दिख रहा है, सुपीरियरली क्योंकि आपका ऑर्बिट है तो भी आपको 60 डिग्रीज, इंफीरियरली अगेन ऑर्बिटल मार्जिन है, तो बेस्ट आपको लैटरली दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज द फील्ड ऑफ विजन ऑफ वन आई। अगर आप देखो 100 डिग्रीज सुपीरियरली, 60 डिग्रीज मीडियली, 100 degrees laterally, 60 degrees medially, 60 superiorly, and 75 inferiorly. If the eye is fixed at one point, so ये हम वो करते हैं, nasally कम है 60, तो ये आपका एक ऐसा सा फील्ड ऑफ विजन है जो एक चार्ट होता है।
उसमें भी पेरीमीटर में भी एक चीज दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट दिखाते हैं और इसको एक फिक्स पॉइंट पे कहते हैं कहाँ पे ये ऑब्जेक्ट दिखा। तो ये यूजुअली 100, 60, मीडियली 60 एंड अप्रोक्सीमेटली 70। फिर अगर हम हर आई को अलग अलग टेस्ट करते हैं तो एज आई टोल्ड यू देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट जहां से आपकी ऑप्टिक नर्व निकल रही है विच इज अबाउट 3 मिलीमीटर्स मीडियल टू द पोस्टीरियर पोल। तो समवेयर हियर आपका एक ब्लाइंड स्पॉट आता है हर आई का। तो ये मोनोओकुलर फील्ड ऑफ विजन है। जो सिर्फ ये जो साइड्स है ये सिर्फ इस आंख से दिख रहा है, ये जो साइड है सिर्फ इस आंख से दिख रहा है, और जो ये कॉमन पार्ट है ये दोनों आंखों से दिख रहा है। दैट इज बाइनोकुलर एंड दिस इज मोनोओकुलर एंड दिस इज योर फील्ड ऑफ विजन। रेटिना पे क्या होता है कि दोनों आंखें थोड़ी थोड़ी दूर है, तो जो चीज इमेज यहां फॉर्म कर रही है वो थोड़ा सा इधर फॉर्म कर रही है। The point on the retina on which the image must fall to be seen as one is called as the corresponding points. And ये fusion ocular level पे हो रही है, दोनों आंखों में तो अलग अलग है। And as we'll be dealing in our next lecture कि दोनों की इमेज अलग अलग जाती है ब्रेन पे, मिक्स नहीं होती, ब्रेन के लेवल पे जाके फ्यूजन होती है। ठीक है, नॉर्मली इस आंख का ब्लाइंड स्पॉट हमें इस वाली आंख से दिख जाता है और इसका इससे, तो हमें कभी ब्लाइंड स्पॉट दिखता नहीं है। The corresponding part is seen by the contralateral eye. If image does not fall on corresponding points, तो diplopia is double vision, strabismus is squint, and defective. Depth perception में भी बताऊंगी तो वो defective हो जाती है। Last thing, amblyopia ex anopsia. कई बारी क्या होता है बच्चों जिनमें less than 6 years of age, एक आंख वीक है और एक नॉर्मल है, बच्चा बता नहीं पा रहा कि उसको कुछ ब्लरिंग है विजन में। ब्रेन क्या करता है, जो डिफेक्टिव इमेज है उसे सप्रेस कर देता है। तो कॉर्टिकल लेवल, बिकॉज यू हैव कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी, अब पुराने लेक्चर्स में सिखाया होगा सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी, सेंसरी सिस्टम में कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी, ये अनकरेक्टेबल लॉस हो जाता है। मतलब उसमें कोई लीजन नहीं है, उसको दिख रहा है, बट क्योंकि successive suppression at the level of the brain, तो उसका vision loss हो जाता है। इसलिए early correction of any defects is very important to prevent this phenomena called as amblyopia ex anopsia. Factors affecting field of vision, again size, बड़ी चीज ज्यादा अच्छे से दिखेगी, illumination, color, white सबसे बेस्ट दिखता है, फिर blue, yellow, red, green, acuity, एंड अगर किसी के नोज या चीक बोन ज्यादा प्रोमिनेंट है तो भी उसका फील्ड ऑफ विजन कम हो जाएगा, और ये पेरीमेट्री से करा जाता है। फाइनली ऑफ्थेल्मोस्कोप इज टू सी विद इन द आई। क्या करते हैं, इससे हम पेशेंट के आंख में लाइट शाइन करते हैं जो बाहर रिफ्रैक्ट करके हमारे आई में घुसती है। वी अज्यूम दैट द एग्जामिनर हैज करेक्ट विजन, सो उसकी रेटिना पे शाइन करेगी, वो वापस उसकी लेंस से निकल के पैरेलल रे ऑफ लाइट बनेगी और फिर हमारी आंख में घुसेगी। ठीक है, और बीच में लेंस है, उनको वो करके चेंज करते रहता है एग्जामिनर जब तक शार्प फोकस नहीं आता, जब तक आपको उसकी आंख अच्छे से क्लियर नहीं दिखती। एंड एज आई टोल्ड यू, ये ऑब्जर्वर की आई पे लाइट शाइन हो रही है, तो ये लाइट यहां से जाएगी, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस है, तो यहां से जब निकलेगी तो पैरेलल होगी, फिर ये मिरर के थ्रू हमारी आंख में घुसेगी एंड इट इज फोकस्ड ऑन आर रेटिना, और करेक्टिव लेंस हम कर सकते हैं उसके बीच में शार्प फोकस के लिए। ऐसा दिखता है हमें। सो दिस इज वन पॉइंट, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, ये फोविया है। दिस इज वन पॉइंट जहां पे आपके रेटिनल वेसल्स बहुत क्लियरली दिखते हैं। सो एनी डिजीजेस जिसमें हाइपरटेंशन या डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसमें हमारी थिकनिंग होती है आर्टेरियोल्स की, उसको हम इससे जरूर देखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फंडस एग्जामिनेशन। With this, I will end our lecture for today. So, I just haven't been able to cover depth perception, which we'll do on Friday at the beginning of our lecture, and then we will start with the retina and the phototransduction and the processing. Okay? I hope you understood. आप लोग please accommodation try करके देखना कि आपको accommodation किसी भी